Students, today we will do a new topic, that is a sentence. Now, what is a sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete idea. Complete idea का क्या मतलब है? मतलब ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, एक कंप्लीट सेंस देते हैं. For example, if I say, my name is Sarah. So in this sentence, there are a group of words, as you can see, my name is, ये सब एक वर्ड हैं, और अगर हमने इन सबको कंबाइन करा तो इन्होंने हमको मीनिंग दिया, जिसका क्या मतलब है कि मेरा नाम क्या है, सारा है. So that is why it has a meaning and it has 4 words. So that is why this is a sentence. Now let's look into some more examples. So the first one is that blue sky is the. So if I say blue sky is the, so yes, there are a group of words, but does it make any sense? No. Is it conveying any meaning? No, it is not conveying any meaning. So if I rearrange the same words, so we can then get a complete meaning. If I say that the sky is blue, so यहाँ पे group of words हैं and yes, it has a meaning. Okay, कि जो sky है वो blue है. So this is a sentence, not the above one. Then if I say an activity English now doing I am, is it a sentence? No, it is not a sentence, although yes, there are a group of words, but it does not make any sense. So that is why this is not a sentence. But if I say that I am doing an English activity now, so yes, this is a sentence as it is making a sense. Now another one is cooks food my mother tasty. Again, yes, there are a group of words, but ये कोई sense नहीं बना रहे हैं. But if I say that my mother cooks tasty food, so yes, this is a sentence as it is also making a sense. Now let's look into some another feature of a sentence. So if I so a sentence is, it always begins with a capital letter. ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जो कि आपको पता है. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. अ क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और कभी कभी एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है. Now let's see that how many kinds of sentences are there. So there are 4 kinds of sentences. The first one is declarative, that is a statement. Then interrogative, something जो कि question पूछते हैं. Imperative, command. Then exclamative, exclamation. Now let's read it one by one. So what are declarative sentences? A sentence that states or declares something is called an assertive or declarative sentence. कोई ऐसा sentence जो कि आपको कुछ state कर रहा है, आप इसमें simply कुछ state कर रहे हो, declare कर रहे हो, या किसी के बारे में you are just giving an information. Okay, इसका मतलब क्या है? इसमें आप किसी भी तरह का question नहीं पूछ रहे हैं, कोई कमांड नहीं कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट सिंपली स्टेटिंग समथिंग और डिक्लेयरिंग समथिंग. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव. ओके, सो ये जो डिक्लेरेटिव है, इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts. The first one is affirmative and the other one is negative. Now what are these sentences? Affirmative क्या होता है? An affirmative sentence tells you that something is so. ठीक है, मतलब ये बस आपको बताता है कि कोई चीज़ हो रही है and something it does exist. You can say basically ये एक simple sentence होता है, positive sentence होता है, because the other one is negative sentence. If I talk about negative sentence, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, समथिंग डजंट एग्जिस्ट.
ओके। सो जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और इसमें क्या आता है, इसमें नो, नो वन, नोबडी, नन, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे सेंटेंस में, सो इट मीन्स वो नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ लेट्स look at some examples. So the first one is, we should tell the truth. Okay, the fridge is empty, it is very cloudy, Peter is running. अब ये जितने भी जो हमने सेंटेंस देखे हैं, so we can realize that these sentences are actually telling something, कि क्या हो रहा है और क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यू नो, इट इज़ स्टेटिंग समथिंग. इफ़ आई से दैट इट इज़ क्लाउडी, सो ये हमें बता रहा है कि जो वेदर है वो क्या है, क्लाउडी है. सो बेसिकली ये डिक्लेयर कर रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंस, सो दैट इज़ वाई ये अफर्मेटिव है. But if I talk about negative sentence, so here it is written that we should never tell lies. ठीक है, there is nothing in the fridge, it is not sunny, he is walking. So these are what? These are negative sentence. क्यों? इसमें आप किसी भी चीज़ को ऐसे नॉर्मली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो. इसमें क्या है, इसमें नहीं आ रहा है. ओके, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कुछ भी करने के लिए. तो जब भी ऐसा होता है, आप किसी भी चीज़ को मना कर रहे हो, तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं इट इज़ नॉट सनी, तो यहाँ पे हमने मना किया, नॉट का यूज़ करा. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. आई होप ये आपको समझ में आया हो. Now what are interrogative sentences? Interrogative sentences क्या होते हैं? An interrogative sentence ask a question. ये क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, interrogative sentence का फिर हम यूज़ करते हैं. Now let's look at some examples. So the first one is, what is the matter? Are you going? What is your name? Are you reading? So इसमें क्या है, इफ़ आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज़ योर नेम, आई एक्सपेक्ट एन आंसर, है ना. मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे कोई जवाब दोगे इसमें. ओके, तो ये जितने भी जो सेंटेंस है, इनको ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं. एंड स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू पुट एन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करना है. एंड इसमें जैसे हम इसमें ये सेंटेंस देख लेते हैं, दैट आर यू गोइंग. ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग दैट आर यू गोइंग, सो हियर व्हाट इज़ आर इज़ योर हेल्पिंग वर्ब. तो आप क्या करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हो, एंड देन यू सेकेंड प्लेस, सब्जेक्ट, एंड देन गोइंग. ओके, अगर मुझे यही सेम सेंटेंस डिक्लेरेटिव में बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग. ओके, सो इफ आई आस्क समबडी दैट आर यू गोइंग, सो दैट पर्सन विल रिप्लाई येस और नो. ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने सिंपली पूछा दैट तुम जा रहे हो. बट देयर आर सर्टेन अदर काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये क्या करते हैं, अगर मुझे किसी से बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ आई वॉन्ट टू आस्क फॉर फैक्ट्स, सो आई विल यूज़ WH क्वेश्चंस. सो दीज आर व्हाट, टू आस्क फॉर फैक्ट्स, use the question words. These are some question words like what, which, who, whom, how, when, where. Why these are known as WH questions? Because यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें WH आता है, नहीं तो H आता है, जैसे कि how है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम इनको WH क्वेश्चन बोलते हैं. ये हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे किसी से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से वेयर आर यू, ओके, तुम कहाँ जा रहे हो. ओके, व्हाट इज़ डेविड सेइंग, वाई वॉज द गर्ल क्राइंग. तो ये जितने भी सेंटेंस है, ठीक है, इफ़ अगर मैं आपको, जैसे हमने अभी देखा दैट आर यू गोइंग था. ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे थे, सिंपल पूछ रहे थे. बट इफ़ आई
एड वेयर इन इट, ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस में वेयर को ऐड कर दूँ एंड से वेयर आर यू गोइंग, सो इट मीन्स अब मुझे क्या है, अब मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो. ओके, सो व्हेन आई वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम किसका यूज़ करते हैं, WH क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं. So students, I hope that you understand what are declarative sentences and interrogative sentences. Please go through it again. I will continue this topic in my next video.